Students, hope you all are doing well. Students, today in this lecture we discuss a very important basic of accounting, that is the golden rules of accounting. Students, in order to decide when to write on debit side and when to write on credit side, right? These two approaches are based on two approach. One is your American approach. One is your American approach. And other one is your English approach, right? One is your American approach and second one is your English approach. Now, this golden rules of accounting are based on your English approach. This is based on your English approach. These are the golden rule of accounting or the double entry system. But these rules are divided into three forms of accounting. That is your real account, nominal account, and your personal account. So let us discuss one by one. First is your real account. Because real account are related to the property of the business. For example, your cash, your land and building, plant and machinery, furniture, trademarks, etc. Property, right? Further, I will discuss about their classification. Here then you understand it more easily. So, real account are related to the property of the business, your assets of the business. And the rule is debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. For example, a furniture purchased for rupees 5,000. So, what comes in beta? Furniture. So, furniture what comes in? Furniture account debit. What goes out? That is your cash. To cash. Furniture is what comes in. Similarly, your next is related to your personal account. Now personal account are related to the individual firm, the company, right? Individual person, that is individual person, the company, bank account or the representative, that is your outstanding salary, prepaid expenses, this is. The rule is debit the receiver and credit the giver. For example, if we simply say that paid rupees 1000 to Hari, paid rupees 1000 to Hari, Hari is the receiver, so Hari account debit, Hari is the receiver, Hari account debit, what you are paid, that is cash to cash account. हमने पढ़ा था ना, what goes out, credit, cash. Next is second example, suppose received 500 from Mohan, received 500 from Mohan. What comes in? That beta cash, cash account debit to Mohan. Here the Mohan is the giver. So Mohan is credit. I hope you are able to understand who is the receiver and the giver. Now second, last one is your nominal account. Nominal account are related to all the expenses and income of the business. For example, salary, wages, purchase, sale, commission received, interest received, right? And the rule is all the expenses, debit all the expenses and credit all the income and profits. So beta, this is all about your golden rule of accounting, right? Just you have to remember it properly. Real account, what comes in debit, what goes out credit. Personal account, receiver the debit, credit the giver. Nominal account, all the expenses are debit and all the incomes are credit. Next one is your rule of accounting based on your second approach, that is your American approach. There are two approaches of rule of debit and credit. One is American and second one is English.
So English approach is based on your golden rule of accounting, and this American approach, this is based on the American approach. Just wait. This is your this is based on American approach. This is simple. If the assets are increasing, they show debit balance. If the assets are decreasing, that shows the credit balance, right? If the liabilities are increasing, credit. If the liability is decreasing, debit. Revenue is increasing, credit. Revenue is decreasing, debit. Expenses are increasing, then it's so that are debit, and if the revenue are decreases, that are credit. Profit, if the profit is increased, that shows the credit balance. If the profit is decreased, that shows the debit balance. Losses increases, comes in debit side, and if the losses are decreasing, it comes on credit side. So this is based on your American approach. Beta, it depends which approach you follow. Either you follow the golden rule of accounting or the American approach. So uh, as comparison to the American approach, golden rules of accounting are much more easier than this. So in this video, I will discuss about these rule of accounting on the basis of golden rules. And beta, earlier I have discussed that what are the three golden rules, that the three types of accounting in the golden rule: personal, real, and nominal. Then now further their classification, that is real, nominal, and personal. First is your personal account. With a personal account are classified as your natural personal account, right? Natural personal account. So for example, Mohan's account, Sohan account, right? Mohan account, Sohan account. This is your natural person. Seema account, proprietary account. This is a physical natural person. Second one is your artificial or legal personal account. That is your artificial, that is your company, limited company account, your institution account, your bank account, company account, your bank account. This is the representative, artificial person, right? And third one is your representative account. When the account represents a particular person or a group of person is known as representative account. For example, if the salary for a month of December are not paid for the employees, the amount payable to these employees would be added, and further under one common title, that is your salary outstanding. Salary outstanding is your representative account, right? So this represent that this salary outstanding, all the salary which are included in this salary outstanding account are still not paid. So this is the representative of those employees whose salary has not been paid yet, right? So this representative account, you include your salary outstanding, your prepaid expenses, right, and your accrued interest, your unearned commission account, etc. Next classification is your impersonal account, that is further classified into real account and the nominal account. As I have previously discussed, the real account is related to the property of the business. Beta, further this property is divided into your tangible real account and intangible real account. Tangible include which you can see, not touch, felt, measured, purchased. For example, your uh, tangible account is include your furniture. This is tangible, now you can see it. Your land, building, these all are your tangible accounts. Intangible account means these are the property but you cannot see or touch it. For example, your goodwill. Goodwill is your property, that is your reputation, that include your goodwill, right? Your patents,
ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, trademark, copyrights are your intangible real account, right? Next one is your nominal account. Nominal account are further classified as your losses and expenses and your income, right? Because these nominal account are, for example, losses क्या होंगे आपके? Salary paid, right? Your bad debts, right? And your discount allowed, salary, rent paid, these all are your expenses. And your income is commission received, interest received, again commission received, interest received, discount received, these all are related to the income. So this is the classification of these accounts. Now understand, next we understand how we classify or the transaction according to these account. बेटा देखो, सबसे पहले इसको अगर आप समझ जाएंगे तो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको आधी अकाउंट समझ में आ जाएगी. एक एग्जांपल लेते हैं, देखो सिंपल. रेंट पेड, रेंट पेड. बेटा रेंट पेड क्या है आपका? द टाइप ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व इज रेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट. दो अकाउंट है. अब ये दो अकाउंट, हमने रेंट अकाउंट का क्या पढ़ा था? नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है. कैश अकाउंट क्या है आपका? रियल अकाउंट है. अब इनका रूल देखो, अगर नॉमिनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट है, रेंट पेड है, आपका एक्सपेंसेस है, तो क्या होगा? डेबिट. कैश अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और कैश क्या हो रहा है? व्हाट गोज आउट, तो क्या होगा? क्रेडिट. समझ में आया? जैसे इंटरेस्ट रिसीव, कितने टाइप्स के अकाउंट है इसमें? इंटरेस्ट रिसीव्ड. एक तो नॉमिनल अकाउंट है इंटरेस्ट, और दूसरा कौन है? कैश. कैश क्या है आपका? रियल अकाउंट. तो बेटा अब देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है. जब रिसीव्ड हो रहा है इंटरेस्ट तो क्या होता है बेटा? क्रेडिट. जितने भी हमारे नॉमिनल अकाउंट में हमारे इनकम्स होती हैं वो क्या होती है? दैट इज क्रेडिट. अब ये जो कैश है ये रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट में क्या होता है? व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. अब ये कैश क्या हो रहा है बेटा? व्हाट कम्स इन. इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा तो कैश आएगा. व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है तो ये क्या होगा? डेबिट. सेकेंड है परचेज फर्नीचर फॉर कैश. देखो दो टाइप्स के अकाउंट इन्वॉल्व होंगे. पहले अकाउंट ढूंढना कि कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है. एक फर्नीचर है बेटा, एक कैश है. अब फर्नीचर क्या हो रहा है? आपने परचेज किया है तो व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, डेबिट. दूसरा आपने क्या किया? कैश है. कैश क्या है? ये भी आपका रियल अकाउंट है, बट क्या है? व्हाट गोज आउट. एक आ रहा होगा तो एक जा रहा होगा, क्रेडिट. जैसे मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, अकाउंट फाइंड आउट करो. एक है मशीनरी इन्वॉल्व होगी, एक होगा कैश. मशीनरी सोल्ड फॉर कैश, कैश. अब यहाँ पर कैश क्या है? व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट से रिलेटेड, व्हाट कम्स इन, डेबिट. एंड नेक्स्ट वन इज योर सोल्ड फॉर कैश. यहाँ पर व्हाट, ये भी दोनों आपके रियल अकाउंट है. एक जाएगा तो एक आएगा. व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, मशीनरी. इट शोज क्रेडिट बैलेंस. सिमिलरली सैलरी आउटस्टैंडिंग. अब बेटा ये सैलरी आउटस्टैंडिंग आपकी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है. अभी हमने पढ़ा था जो आपका पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट के 3 फॉर्म होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. और सैलरी अकाउंट क्या है आपका? रिप्रेजेंटेटिव और सैलरी अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव है, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट दोनों इन्वॉल्व है. सैलरी अकाउंट भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग आपका पर्सनल अकाउंट है. अब क्या होगा यहाँ पर? सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या है बेटा? आपकी एक लायबिलिटी होगी है, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग. तो इस अब जैसे बेटा ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है. अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज हो रही है. लायबिलिटी क्या हो रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है. जब लायबिलिटी मेरी इंक्रीज होगी तो सिंपल है, एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. समझ में आया? सैलरी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर क्या है बेटा? आपका पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, और आपकी लायबिलिटी है. लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? इसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है. आउटस्टैंडिंग सैलरी की सिंपल एंट्री क्या बन जाएगी?
salary account debit to outstanding salary. I hope you are able to understand. Next है बेटा आपका, जैसे सपोज करो what is this, paid to सुरेंद्र. अब यहाँ पर देखो there are two types of accounts are involved. Paid to सुरेंद्र. One is Surender. Surender is related to personal account and other one is cash. So Surender is your receiver. Paid करा आपने तो Surender receiver होगा, तो Surender account debit to cash. So this is all about how you identify the accounts and post the transaction in the various account. बेटा नेक्स्ट होती है आपकी, नेक्स्ट एक सिंपल एक क्वेश्चन लिया है हमने. क्वेश्चन देखिएगा आप. फर्स्ट आपका है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹80,000. अब देखो यहाँ पर क्या है, व्हाट, मोहन स्टार्टेड विथ बिजनेस कैश ₹30,000. पहली एंट्री याद कर लेना. पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. कैसे, व्हाट कम्स इन, दैट इज योर कैश. And second one is your, what is this, कैपिटल. आपकी लाइबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज हो रही है. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने अमेरिकन अप्रोच से क्या पढ़ा था, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होती है. तो कैश अकाउंट डेबिट. तो पहली एंट्री याद कर लेना आप, जो फर्स्ट एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू योर कैपिटल अकाउंट. इसको हमेशा याद कर लीजिएगा. पहली एंट्री जो पास होती है दैट इज रिलेटेड टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. और अगर आप इसको वैसे देखना चाहेंगे रूल्स के अकॉर्डिंग, गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग, कैश है बेटा, व्हाट कम्स इन योर डेबिट, दैट इज रियल अकाउंटिंग, एंड व्हाट कम्स इन, ठीक है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट. And the capital account is to be credited according to the rule of personal account, that is credit the giver. दिया किसने है ना, कैपिटल, प्रोपराइटर ने दिया है. और जो प्रोपराइटर देता है बिजनेस में उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल. हमने पढ़ा था ना बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट से. इफ प्रोपराइटर ब्रिंग एनीथिंग टू द बिजनेस दैट इज ट्रीटेड एज कैपिटल. और ऐसे ही इफ विड्रॉ समथिंग आउट ऑफ द बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस, तो हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, ड्रॉइंग. दे आर ऑल्सो कम अंडर दी पर्सनल अकाउंट. हम यहाँ पर अब प्रोपराइटर बिजनेस को, हम तो बिजनेस और बिजनेसमैन को दोनों अलग ट्रीट करते हैं, ठीक है. तो बट अगर अब यहाँ पर बिजनेसमैन का नाम तो नहीं लिखूंगी, तो बिजनेसमैन अगर कुछ लेके आ रहा है तो हम उसको क्या लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं. तो कैश किसका हो गया, रियल अकाउंट हो गया, और कैपिटल क्या है आपका, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है. तो पहली एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. सेकेंड एंट्री बनेगी बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट. अब देखो यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक है परचेज, दूसरा है राम. परचेज आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या बन जाएगा बेटा, राम. अब यहाँ पर राम क्या है, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, या तो वो रिसीवर होगा या फिर वो गिवर होगा. अब यहाँ पर आपने परचेज किया है इससे, तो ये क्या है, गिवर है. गिवर क्या होता है, क्रेडिट टू राम, ठीक है. नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन कैश, सॉरी, सोल्ड गुड्स ऑन कैश. सोल्ड गुड्स ऑन कैश, यहाँ पर देखो दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, एक कैश है. कैश आपका रियल अकाउंट है, या तो व्हाट कम्स इन होगा या व्हाट गोज आउट होगा. अब यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सेल्स क्या है आपकी, सेल आपकी नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है. तो बेटा यहाँ पर जब आप गुड्स को कैश में शोल्ड करोगे तो व्हाट कम्स इन, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स क्यों हुआ क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी हमारी इनकम से रिलेटेड होती है दैट आर क्रेडिटेड. कैश व्हाट कम्स इन, और ये आपका हो गया नॉमिनल अकाउंट से ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट, सोज द क्रेडिट बैलेंस. नेक्स्ट आपका आता है ब्रॉड फर्नीचर फ्रॉम यश फॉर कैश 8,000. अब यहाँ पर देखिए दो अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर एंड योर फर्नीचर फ्रॉम, ब्रॉड फर्नीचर फ्रॉम यश फॉर कैश. अब कैश से आपने परचेस किया है बेटा फर्नीचर
ब्रॉड फर्नीचर फ्रॉम यश फॉर कैश भी बोले है, ठीक है, यश फॉर कैश। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, आपका यहाँ पर क्या इन्वॉल्व है, कैश, और दूसरा आपने फर्नीचर ब्रॉड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या एंट्री करेंगे, व्हाट कम्स इन, दैट इज योर फर्नीचर, एक तो रियल अकाउंट है, दूसरा क्या करेंगे, टू कैश। अगर यहाँ पर कैश नहीं लिखा होता, अगर सिर्फ यश लिखा होता तब हम यश को यहाँ पर इन्वॉल्व करते, क्योंकि यहाँ पर मुझे कैश रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री आती है पेड सैलरी टू द मैनेजर। अब देखो, पेड सैलरी टू द मैनेजर, सैलरी पेड कर दी होगी आपने, तो किस में पेड करी होगी, कैश में करी होगी या बैंक के थ्रू करी होगी। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या बन जाएगी, सैलरी आपका एक्सपेंस है, एक नॉमिनल अकाउंट इन्वॉल्व है सैलरी, दूसरा कैश पेड किया होगा, कैश इन्वॉल्व है। तो क्या एंट्री बन जाएगी बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू योर कैश, ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 65,000 से एंट्री बन जाएगी। डेबिट क्रेडिट थोड़ा समझ में आ रहा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तीसरा एंट्री बनती है पेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड इन कैश, पेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड इन कैश, रेंट अकाउंट डेबिट, इसकी क्या बन जाएगी, एक रेंट पेड कर रहे हो, कैश इन्वॉल्व है, और दूसरा आपका रेंट इन्वॉल्व है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट क्यों हुआ डेबिट, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस टू क्या दिख जाएगा, कैश, व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो ऐसे बेटा थोड़ा सा एंट्री बनाना सीखेगा, ठीक है, दिस इज वेरी इजी, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसका एंट्री जो पास होती है बेटा, उसको ऐसे करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट देख लीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट में 80,000, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट। उसके बाद में हम क्या करते हैं, एक नरेशन पास करते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक। सेकंड जो 6 डेट आएगी 6 जनवरी, फिर आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, राम का नाम आया है तो क्रेडिट में परचेज किया होगा, 30,000, ठीक है। नेक्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमने सेल करी थी ना कैश में, गुड सेल्स ऑन कैश, तो नरेशन लिख, जैसे 15 जनवरी की डेट होगी, नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड सोल्ड ऑन कैश, जो भी हुआ है। तो ये थोड़ा सा बेटा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको देख लीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट 60,000 से टू सेल्स 6,000 सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 6,000, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, हमने पढ़ा था ना, ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बीइंग ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश 6,500, नहीं सॉरी, ये फर्नीचर इज योर 8,000, थोड़ा फिगर ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट है आपका बीइंग सैलरी पेड टू द मैनेजर, सैलरी पेड टू द मैनेजर था ना क्वेश्चन, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, अमाउंट आ जाएगा 6,500। नेक्स्ट बीइंग सैलरी पेड टू द मैनेजर, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। लास्ट में बेटा हम कर देते हैं इसका टोटल, हमारा डेबिट हमेशा किसके इक्वल आना चाहिए, क्रेडिट के, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट। ये होता है प्रॉपर फॉर्मेट एंट्री पास करने का, प्लीज़ इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आएगा बेटा, नेक्स्ट देखिए, सो नेक्स्ट हम करेंगे, वी आर डूइंग सम मोर क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, if you want further videos on these journal entries, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा और एंट्रीज में लेके आऊँगी, कंपाउंड एंट्रीज, ठीक है, बेसिक, और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज, थोड़ा सा हम टफ में जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस